Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the another phylum from non-chordata from the animal kingdom, which is Mollusca. Mollusca is a very interesting phylum again, and the another name for Mollusca is a soft-bodied animal. They are all soft-bodied animal, and it's a very interesting to understand if they are soft-bodied then how they protect their soft body. वो हम आज पढ़ेंगे. And this is a second largest phylum from the you can say non-chordata. Second largest है. Earlier we have discussed in the arthropoda it was the largest phylum, and this is the second largest phylum. So ये दो चीजों पे questions पूछने की बहुत ज़्यादा chances हैं. So remember largest and second largest phylum. Now in this phylum we are going to discuss about the characteristic again, जैसे हम another phylum के साथ भी करते आए हैं. But then here I will be telling you the structure of basic structure of mollusk with the hypothetical diagram. So that would be a very interesting for you all. Just learn this phylum very carefully. Give the heading Mollusca, write it down, soft-bodied animal, it's the second largest phylum, and we'll be discussing the another characters of Mollusca. Now here we'll discuss the characteristic of Mollusca, the basic characteristic of Mollusca, and then we'll discuss the structure of Mollusca. Okay, so now see, we already have discussed these are the soft-bodied animals, and this phylum is the second largest phylum from the animal kingdom, like non-chordata section. So these 2 points that you have to remember so that you can ultimately remember the characteristic of it. So see, this is again Johnstone gave this term which is called as Mollusca as a phylum. It's the second largest phylum because it has almost 60,000 species in it. So that is why it is second largest phylum. First was, we have seen already, first was Arthropoda. Now here it's a second largest Mollusca. Habitat mostly it should be a marine hoga. It should be like it can dwell in any kind of water, fresh water, marine water. Some of the forms can be terrestrial also. Terrestrial भी है. So terrestrial होगा, but still it requires some sort of moisture to survive. So that is why dampy soil. Next, body form. Generally we have seen till now the body should be segmented, but here this is a very particular character about this. The body is unsegmented. Most of the like 99.9% animals would be unsegmented. उनमें segment नहीं होता है. But then there is an exceptional case जो कि हम पढ़ेंगे अभी. But unsegmented होते हैं, and body also has been divided into head, muscular foot and hump. hump हमने सुना ही होगा. जनरली कैमल में होता है hump, मतलब एक bumpy part होता है like this. So मैं आपको इसका एक hypothetical structure भी draw करके दूंगी so that you can able to remember each and every part from this phylum. So बस right now just understand head, muscular foot and hump होता है. So head होगा, फिर उसके बाद muscular foot एंड इसके ऊपर एक हम्प हो सकता है. हम्प मतलब एक बम्पी पार्ट. जनरली आपने ये देखा होगा. अगेन दिस थिंग, एक स्नेल होता है, छोटा सा डेलिकेट सा स्नेल होता है, एंड वो स्नेल जो है उसके ऊपर एक शंख जैसा होता है, शेल होता है, और वो उसके साथ चलता है. देखा होगा आपने. जनरली रेनी सीजन में ये दिखाई देते हैं जहां मॉइस्चर रहता है. सो वो भी उनके आगे टेंटाकल्स बाहर निकाल के चलते हैं सो दैट दे कैन सेंस द आउटर एनवायरमेंट. एंड अगर आपने कभी उसको टच किया होगा तो वो टेंटाकल्स को अंदर खींच के वो खुद भी वो शंख के अंदर चले जाते हैं, शेल के अंदर. सो बेसिकली शेल इज यू कैन से प्रोटेक्टिव इन नेचर इन दैट वे फॉर दिस फाइलम, राइट. विल सी दैट दिस डायग्राम, डोंट वरी, हम इसका डायग्राम डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी फिनिश द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वन. फिर है नेपोलिना. दिस इज अ सेगमेंटेड मॉल्यूस्क. नाउ दिस कैरेक्टर इज नॉट मेंशन इन द एनसीईआरटी बुक, but still if you get the question in NEET examination, so make this point important because exceptional चीजें पे questions पूछे जा सकते हैं. Now next is symmetry. Symmetry should be a bilateral symmetry होना चाहिए. Should be a bilateral symmetry. Triploblastic and coelomate animals होने चाहिए. Organ level system of organization. Organ level होगा, मतलब यहाँ कोई doubt ही नहीं है. That should be the organ level only. शेल अभी देखिए आपको 2 चीजें समझनी है. शेल जैसे एज आई टोल्ड यू नाउ कि शेल जो होता है कि शेल ऊपर उसको प्रोटेक्शन के लिए होता है. तो वो क्या होता है, ये उस पे एक मैंटल भी होता है. जैसे ये देखो, ये हम्प है, दिस इज हम्प, एंड ये शेल रहेगा.
सो शेल एंड हम्प के बीच वाला जो पार्ट है विच इज कॉल्ड एज मैंटल, राइट। सो एक मैंटल कनेक्शन भी होना चाहिए, जैसे ये हम्प है इसके ऊपर शेल रहेगा और दोनों के बीच की कैविटी होगी मैंटल कैविटी। दिस इज सिक्रेटेड बाय मैंटल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब शंख या शेल जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। शेल में भी एक्सटर्नली हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया वो एक स्नेल का टाइप है जो कि उसके बाहर से उसको प्रोटेक्शन करता है, वो उसको लेके ही चलता है। मोस्ट ऑफ द मोल्यूस्क इंटरनल भी हो सकता है, कटल फिश या स्लग में इंटरनली भी शेल प्रेजेंट हो सकता है एंड सम ऑफ देम कैन बी लाइक ऑक्टोपस में कहाँ शेल होता है बट स्टिल ऑक्टोपस इंक्लूडेड इन द मोल्यूस्का। सो किसी एनिमल में है किसी एनिमल में नहीं है, बट आपको एक चीज यहाँ अंडरस्टैंड करनी है, दिस काइंड ऑफ शेल्स आर फॉर डिफेंसिव थिंग, मतलब उनको प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो पाइला या स्नेल जो है कटल फिश है इनको वो प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है, बट ऑक्टोपस में प्रोटेक्शन के लिए अलग चीज मेंशन करी है। अलग चीज मतलब दे हैव अ इंक ग्लैंड, इनके पास क्या होती है इंक ग्लैंड होती है एंड इंक ग्लैंड से वो क्या करता है, मतलब जैसे उसको डेंजर फील होता है इट जस्ट रिलीजेज अ इंक लाइक सब्सटेंस जो कि वाटर में मिक्स हो जाता है, वाटर वुड गेट कलरफुल इन नेचर और वो वहां से आराम से भाग सकता है। तो माय पॉइंट इज दैट कि ये शेल जो है ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। सॉफ्ट बॉडी मतलब उनपे अगर कोई ऐसा उनको हिट भी करेगा या उनके ऊपर कहीं कोई अटैक करता है तो इनकी बॉडी बहुत आराम से डिस्ट्रॉय हो सकती है। टू अवॉइड दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर बॉडी तो नेचर ने उनको एक सॉर्ट ऑफ शेल के फॉर्म में प्रोटेक्शन दिया है, ठीक है। सो दीज आर द सम यू कैन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम दिस। नाउ वी कैन ऑल्सो डिस्कस द नंबर ऑफ अगेन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम दिस। नाउ दीज टू कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। just try to understand these characters in a very simple way so that NCERT में ही ये mention किए हुए हैं और इस पे questions पूछे जा चुके हैं नीट में। So first you have to understand the body form of it, body कैसी arrange होती है। At the same time you also have to understand the mantle and mantle cavity क्या होता है। So mantle is also called as pallium, ये नाम याद रखिए जो बुक में mention नहीं किया हुआ है। Thin fleshy fold of dorsal body, डॉर्सल बॉडी वॉल मोर और लेस कवरिंग बॉडी, मतलब ये पूरे बॉडी को कवर करेगा, कहीं नहीं करेगा, बट दिस कुड बी अ कनेक्शन यू कैन से बिटवीन विसरल हम्प एंड शेल। नेक्स्ट इज इट इनक्लोजेस अ स्पेस विच इज कॉल्ड एज मैंटल कैविटी। विल सी दैट मैं आपको यहाँ एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके देती हूँ सो दैट इन दैट वे यू कैन इजिली रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ मोल्यूस्का, टिपिकल मोल्यूस्का कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज दिस कैन बी अ बॉडी फॉर्म, आप कंसिडर कर सकते हो, ये एग्जैक्ट सेंटेंस मैंने एनसीईआरटी से पिक किया है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मैंटल ओवर अ विसरल हम्प, मतलब ये क्या है वो क्या बोल रहा है, दिस इज ऑल्सो लाइक मैंटल कैविटी हो गया। तो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर जो स्किन होता है विच फॉर्म्स अ मैंटल ओवर द विसरल हम्प, विल सी दैट अभी हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब। The space between hump and mantle is called as a mantle cavity। तो hump and mantle जो है उसके बीच में जो स्पेस है उसको mantle cavity बोला जाता है, राइट। अभी मे बी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपका ये कंफ्यूजन इन अ मिनट दूर कर देती हूँ विद एक हाइपोथेटिकल डायग्राम से। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर, इट्स अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। आई मीन टू से दैट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके बॉडी का पार्ट कहाँ कौन सा लोकेटेड है एंड ये आप समझ गए तो आपको ये बहुत आराम से हर एक चीज इसकी याद हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद द शेल। शेल होगा मतलब ऊपर से शंख होगा या शेल होगा उसके प्रोटेक्शन के लिए जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो ये है शेल जो यहाँ मैंने दिखाया है, ये कलर मार्कर से शेल है। अभी शेल के नीचे पूरी बॉडी होगी, राइट, शेल के नीचे बॉडी होगी। सो ये देखो ये बॉडी है, ये उसका हम्प है, दिस इज विसरल हम्प। विसेरा मतलब अंदर का जो बॉडी का पार्ट है, इंटेस्टाइन्स एंड ऑल जो भी फ्लेशी पार्ट होता है उसको विसेरा बोला जाता है। तो विसेरल हम्प मतलब ये ऐसा बम्पी पार्ट रहेगा जो कि शेल के साथ कनेक्टेड रहेगा थ्रू मैंटल। यहाँ देखिए दिस इज द मैंटल, ये है मैंटल और ये अंदर की पूरी जो है दिस इज कॉल्ड एज मैंटल कैविटी। मतलब ये जो है ना ये बाहर से जो आपको ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा 3D स्ट्रक्चर अज्यूम करिए, शेल अलग सा है, एनिमल उसके अंदर अलग सा है और वो शेल एंड एनिमल के बीच वाली जो स्पेस है ओवरऑल शेल के अंदर वो है मैंटल कैविटी, ठीक है।
सो दिस इज मेंटल, दिस इज विसरल। हम क्लियर है आपको, ये सेम चीज एनसीईआरटी में मेंशन करी है। अभी ये एनिमल है, देखिए ये अंदर ये ब्लू कलर वाला एनिमल है, ये एनिमल में आई होंगे, जैसे एंटीनास भी होते हैं, जैसे कल हमने कॉकरोच पढ़ा, एंटीनास भी होंगे फॉर द यू कैन से एज अ सेंस ऑर्गन। तो दीज आर दी, ये आई है, ये हेड होगा यहाँ, ठीक है ना। हेड होने के बाद इट ऑल्सो हैज अ टंग लाइक स्ट्रक्चर, रास्पिंग ऑर्गन, जो कि फूड एनगल्फ करने में हेल्प करता है। बट यहाँ हम टंग नहीं बोलेंगे, यहाँ हम उसको बोलेंगे रेड्यूला। सो दिस इज रेड्यूला। माउथ के अंदर होगा ना, ये हेड है तो दिस इज, बट ऑब्वियस शुड बी माउथ होना चाहिए, माउथ होगा, माउथ के अंदर होगा रेड्यूला, इट एक्ट्स लाइक अ टंग। फिर उसके बाद माउथ के अंदर जाएगा बॉडी, स्टमक आएगा, आफ्टर दैट इट वुड बी इंटेस्टाइन एंड फाइनली द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसके पास गिल भी होते हैं, गिल हमने रिस्पिरेटरी ऑर्गन में अभी हम पढ़ने वाले हैं। अलग अलग मॉल्यूस्क में अलग अलग रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम वुड हैव अ गिल्स। फिर उसके बाद ये फुट है, ये फुट है मतलब ये पूरा क्रिएचर जो है ये शेल के अंदर सिचुएटेड है, और शेल से इसने कनेक्टिविटी बनाई रखी है थ्रू मेंटल, और शेल और एनिमल के बीच वाली जो भी स्पेस होगी विच इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। तो है ना ये इजी। सो ये एक डायग्राम जो है ये आपको ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर उसका अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा है। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल की जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मोल्यूस्क, सो दैट आप हर एक चीज याद रख सकते हो। आप रेड्यूला कहाँ है, विसरल हम कहाँ है, मेंटल क्या चीज है, शेल कहाँ है, शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो ओवरऑल ये एक फाइलम आपका सिंपल से एक डायग्राम में आपको अंडरस्टैंड हो सकता है। Okay, so understood now this thing. Now we'll discuss remaining characteristic of it. Now the digestive tract is complete. Digestive tract complete होता है, and basically they also have a open type of blood vascular system. Open type का होता है, but there is a one special characteristic about this. Their blood is blue in color. Blue होता है, so blood is usually blue. किसकी वजह से होता है? जैसे हमारा रेड कलर का है, वैसे इनका ब्लू होता है, तो है ना इंटरेस्टिंग। सो ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? बिकॉज इट हैज अ प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग ब्लू रिस्पिरेटरी पिगमेंट, एंड you all should aware about the compound that has a copper containing blue color pigment which is hemocyanin। याद रखिए hemocyanin जो है, that is why because of this hemocyanin they have a blue color का blood। कितना इंटरेस्टिंग है, सोचिए ब्लू कलर का ब्लड कैसे होता होगा। नेक्स्ट इज इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, तो मेक दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स को आप इम्पोर्टेंट करते रखिए व्हाइल राइटिंग नोट्स, सो दैट आपको बार बार वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसमें उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करिए। जस्ट मेक दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट के लिए एक सिंबल डिसाइड करिए। पॉइंट्स आप कैसे डिनोट करोगे उसके लिए एक आपका एक साइन डिसाइड करके रखो। नोट्स आपके बहुत सिस्टमेटिक होने चाहिए, बार बार नोट्स रिपीट करने में, लिखने में टाइम वेस्ट मत करिए। सो बेसिकली कटल फिश जो है इसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। सो ये क्वेश्चन भी आपको हो सकता है बिकॉज इट्स एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केसेस हमेशा अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज इट्स अ सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, इसमें 60,000 से ज्यादा स्पेसीज है, तो इसके पास भी वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं, जैसे गिल्स, टीनिडिया होगा, मेंटल एंड पल्मोनरी सैक्स हो सकता है सेमी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। सेमी मतलब दे वुड रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ मॉइस्चर एंड लैंड, तो थोड़ा सा सर्वाइव करने के लिए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में दे ऑल्सो हैव वन और टू पेयर ऑफ यू कैन से पेयर सैक्स ऑफ किडनी। गिल्स इट कैन ऑल्सो बी एक्टिंग लाइक एक्सक्रीटरी इन नेचर, गिल्स भी हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट विल डिस्कस दैट इन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, बट हम यहाँ मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ। ये है इसमें अमोनिया जो होता है, अमोनिया इज अ चीफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, तो ये याद रखिए अमोनिया जो है ये चीफ एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। दैट इज व्हाई सम ऑफ देम वुड बी कॉल्ड एज अ मोनोटेलिक एनिमल। विल सी दैट व्हेन वी डिस्कस द ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो एक्सक्रीटरी में आपको किडनी याद रखना है, वन और पेयर ऑफ किडनी, और यहाँ आपको गिल्स भी याद रखना है। फिर उसके बाद है सेंस ऑर्गन। नाउ हियर कम्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सेंस मतलब उसको बाहर का, इतना सा एनिमल बाहर का नेचर के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, सो इट शुड ऑल्सो हैव अ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में देखो आई तो रहेगा, आई रहेगा, और आई जनरली टेंटाकल्स भी होते हैं उनके छोटे से, लेकिन आईज आर प्रेजेंट ओवर स्टॉक्स, स्टॉक्स पे प्रेजेंट रहती है।
छोटी सी, जैसे मैंने अभी यहाँ डायग्राम में भी आई थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ किया था, उसको बोला जाता है ओमाटोफोर्स। मतलब ओमाटोफोर्स जो है दे कैन रिप्रेजेंटेड एज अ यू कैन से आइज। सो आइज प्रेजेंट ओवर द स्टॉक्स, स्टॉक्स पे रहता है और वो स्टॉक्स को बोला जाता है ओमाटोफोर्स। एंड बेसिकली स्टैटोसिस्ट, जैसे हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा है, स्टैटोसिस्ट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन फॉर देम, बैलेंस करने के लिए भी है। उसके साथ है ऑस्पार्डियम। ऑस्पार्डियम जो है ये सम मोल्यूस्क में प्रेजेंट होते हैं। वो जनरली वाटर का नेचर कैसा है, केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर को सेंस करने के लिए होता है। सो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मेंशन नहीं करी गई है टेक्स्ट बुक में, बट स्टिल आई वांट यू ऑल टू राइट दिस इन योर नोटबुक और उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट करके रखिए, राइट। सो दीज आर द सम यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोल्यूस्का। मोल्यूस्का की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एनसीईआरटी के कैरेक्टरिस्टिक प्लस अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी वो मैंने यहाँ कवर किए हैं। विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ मोल्यूस्का। नाउ हियर आर सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स फ्रॉम मोल्यूस्का. We'll just quickly discuss in detail some of the examples of it, and they also have a very fascinating characteristic. That is why I decided to take up these examples in detail. So first is apple snail, जो कि सबने देखा होगा, snail होता है। तो snail में क्या क्या चीजें हैं, कहाँ ये पाई जाती है, that we'll discuss. सो उसकी हैबिटेट या तो पॉन्ड हो सकती है, पैडी फील्ड्स में होती है, समटाइम्स इट कैन बी द रिवर हो सकता है, स्ट्रीम्स में पाई जाती है समटाइम्स, राइट। एंड वो क्या होती है, चीफली इट इज अ हर्बीवोर्स, ये हर्बीवोर्स होती है, बट ये एक्वाटिक प्लांट्स पे फीड करती है। चीफली इट विल बी फीडिंग ऑन दी एक्वाटिक प्लांट एंड दीज आर पिस्टिया एंड वेलिस्नारिया। सो पिस्टिया एंड वेलिस्नारिया, दो चीजें याद रखिए, दो एक्वाटिक प्लांट्स के नाम। तो गिल्स देखो, नाउ इट हैज अडेप्टेड द यू कैन से बोथ हैबिटेट, ये जमीन पे भी रह सकता है, ये पानी में भी रह सकता है, बिकॉज इट हैज दैट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जो दोनों हैबिटेट्स में इसको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। तो अगर ये पानी में रहता है, इफ इट इज यू कैन से इन वाटर, दैट टाइम इट कैन बी रिस्पिरेशन विद द गिल्स। अगर ये लैंड पे रहती है, इफ इट इज ऑन लैंड, देन इट वुड बी अ पल्मोनरी सैक्स, दैट इज व्हाई इट हैज एम्फीबियस टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। मतलब ये दोनों टाइप का रिस्पिरेशन शो कर सकता है, दैट इज व्हाई इट हैज एक्वायर्ड अ यू कैन से एम्फीबियस लाइफ। नेक्स्ट इज इसमें ऑस्पार्डियम होता है। ऑस्पार्डियम हमने अभी पढ़ा, ये वाटर को सेंस करता है, वाटर का केमिकल एंड फिजिकल नेचर सेंस करने के लिए इसके पास ऑस्पार्डियम होता है। नेक्स्ट इज cuttlefish. Some of you must have seen this cuttlefish, सेपिया जिसको बोलते हैं। इट्स एडिबल ऑर्गेनिज्म, इसको हम खा सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली इसका जो शेल है वो हम एज ए फूड, जो हमारे घर में बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स को, पेट बर्ड्स को हम वो उसका शेल है वो फूड के फॉर्म में दे सकते हैं। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हैज अ इंक ग्लैंड, इसके पास एक इंक ग्लैंड होती है जो कि एक इंक को रिलीज करता है। जब भी उसको डेंजर फील होता है, उसको प्रीडेटर से एस्केप करना है, तो वो इंक मिक्स कर देता है, स्मोक क्लाउड फॉर्म कर देता है वाटर में, वहां से एस्केप होता है। और सरप्राइजिंगली वो जो इंक है, वो इंक जनरली आर्टिस्ट पेंटिंग के टाइम पे उसको यूज करना प्रेफर करते हैं, जो कि सेपिया से हमें ऑब्टेन होता है। ये मरीन होता है, इट्स अ गुड स्विमर, ये गुड स्विमर है। उसमें पियर शेप इंक ग्लैंड होता है, इंक से सैक कंटेन्स अ ग्लैंड, ठीक है, एडिबल होता है। नेक्स्ट इज लोलिगो स्क्विड। स्क्विड के बारे में you all have to aware about one characteristic in terms of squid, लोलिगो, which is ये giant squid है। और giant squid इसमें largest living invertebrate है, up to 18 meters long। ये giant squid है, आर्कीटूथिस, ये नाम याद रखिए। giant squid अगर आपको आता है तो उसका मेजरमेंट ऑन एन एवरेज अराउंड 18 meters लॉन्ग है। The giant squid has the largest eye in the animal kingdom. तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, क्वेश्चन कभी आया नहीं आया, बट फिर भी एज अ बायो स्टूडेंट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम इसको ही बोलते हैं। एंड ये वार्म सीज में पाए जाते हैं, दे आर ऑल्सो एडिबल एंड एट द सेम टाइम दे कैन ऑल्सो रिलीज द इंक है इनके पास। सो these are the three examples. Now we'll take up some another examples from the mollusca. Chaetoplura, ये जो example है इसको काइटॉन भी बोला जाता है। It's a marine होता है ये, और वो it found attached to the rock by its foot, ये rock पे जनरली अटैच रहता है।
डेंटेलियम जो है इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेंट टस्क शेल, ये इसको नाम दिया है एलिफेंट टस्क शेल। मरीन होता है, ये बरोइंग सैंड में, जनरली बरोइंग सैंड इसका हैबिटेट है। ये इसमें फिलामेंटस टेंटैकल्स होते हैं, इसका शेल थोड़ा सा कर्व होता है, इसमें टेंटैकल्स होते हैं। सो हैज अ कैप्टाक्यूला, राइट, और वो कैप्टाक्यूला यूजफुल फॉर द फीडिंग। मतलब यहाँ क्या है, इसमें रेडुला नहीं है, बट रेडुला जैसा दूसरा स्ट्रक्चर है जिसका नाम दिया है, देखो यहाँ अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, कैप्टाकुला, जो कि यूजफुल फॉर द फीडिंग में यूज होता है। नेक्स्ट इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस डेविल फिश है, हमेशा याद रखिए। ये मरीन होता है, ये प्रे को उसके सलाइवा से किल कर सकता है। इट कैन किल प्रे विथ इट्स पॉइजनस सलाइवा। इट कैन चेंज इट्स कलर भी चेंज कर सकता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऑक्टोपस इजेक्ट एन इंकी फ्लूइड, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इसमें शेल एब्सेंट रहता है, बट शेल एब्सेंट होना मतलब उसको डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए इंकी फ्लूइड दिया है। सो इंकी फ्लूइड इन वाटर एंड फॉर्म्स अ स्क्रीन फॉर डिफेंस फ्रॉम इट्स एनिमीज। In spite of absence of shell, still it has a one power, and which is the inky fluid. ठीक है, we have discussed here the number of examples, but still I have deliberately missed the 2 examples from NCERT that you have to go and you have to check what all examples I have skipped, so that you can just mention in the comment section कि मैडम हमने ये skip किया है, और आपको वो भी नोटबुक में लिखना है। वन मोर पॉइंट इज हियर इंटरेस्टिंग, जो कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा स्किप हो गया था, वो ये है, दे आर डायोशियस, यूजुअली डायोशियस होते हैं। एंड ओविपैरस है, ओविपैरस मतलब एग लेइंग एनिमल्स, ओविपैरस मतलब एग होता है, एग लेइंग एनिमल्स। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, तो थ्रू लार्वा या फिर ऐसा कोई मीडिएटर स्टेज होगा एडल्ट तक पहुंचने के लिए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इसका मतलब इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट का, राइट। So yes, that was all about the mollusca. It's a very easy phylum, I would say. Smartly याद रखिए कैरेक्टर टू कैरेक्टर कैसे ये डिफर करता है। If any doubt, you can let me know in comment section, and see you in next session. Thank you.